Dear students, good morning. All appearing 11th class students, welcome you in Commerce System in DUP schools. I Rajiv Kumar, PGT Economics teacher. Today I teach you some basic introduction of microeconomics in your syllabus. In your syllabus in economics, in two books. First part is microeconomics and second part statistics. Today I discuss some topic part of microeconomics and I give you some basic information of the economics. You see in this video, after you tell me about some information regarding to your commerce system and your introductions. Okay, microeconomics in first unit in your syllabus is basic introduction of microeconomics. Okay, and second unit in your syllabus, consumer equilibrium point. Today I first explain you some points of your syllabus second unit, consumer equilibrium. Consumer equilibrium and second unit is very important in your syllabus. Consumer equilibrium and demand consumer equilibrium. In this unit, meanings of utility, marginal utility MU, law of diminishing marginal utility, condition of consumer equilibrium, use the marginal utility analysis, indifference curve analysis of the consumer, equilibrium the consumer budget set and budget line, preference of the consumers, help to indifference curve, indifference map, and condition of consumer equilibrium point. I again given some videos unit second. First video I make meaning of utility, law of diminishing marginal utility, and second video condition of consumer equilibrium using marginal utility analysis, and third video indifference curve analysis of the consumer equilibrium and the budget line, and fourth video I make condition of a consumer equilibrium point. Okay, this unit before I start today, basic introduction of the economics. Today first, meanings and definition of the economy. Meanings and definition of the economy. Economics. You know first, economics is a major subject in the commerce system. Economics we read in the art system and commerce system. Same syllabus, same topics and same marks. Okay, economics. Definition of economics. It is a social science of the human behavior which aims and the allocation of scarce resources. Humans behavior and allocation of resources. Human behavior means ह्यूमन बिहेवियर मीन्स आपका जो बिहेव है उस पर डिपेंड करता है
यानी आपकी जो एडवांटेज है, डिजायर्स हैं, वो क्या है? जैसे आपने आफ्टर 10th क्लास पास कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। ओके, डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। तो ह्यूमन बिहेवियर्स, जब ह्यूमन बिहेवियर्स के अपन स्टडी करते हैं तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? इकोनॉमिक्स का होता है। आपकी जो आइज ओपन टू आइज क्लोज एवरी डे, जब आप आंखें खोलते हो और आंखें बंद करते हो, और आपकी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं, मोस्टली यही माना जाता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड ऑन करेंसी, और करेंसी डायरेक्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स है, आपके पास करेंसी है तो आपकी लाइफ है वो कंटिन्यूस आप उसको स्पेंड कर सकते हो। यदि आपके पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है तो अपन उस पर अपन उसके बिना अपन लाइफ है वो क्या होती है, अधूरी सी मानी जाती है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये, मोस्टली इसमें क्या लर्न करते हैं हम? ह्यूमन बिहेवियर्स एंड विच ऑफ द एम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज मीन्स अपने पास जो रिसोर्सेज हैं जिसको अपन यूटिलाइज करते हैं, आपकी इनकम के सोर्सेज हैं। आपकी फैमिली की इनकम सपोज कीजिए 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज आप क्या है आपके पास एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। उस 10,000 के अकॉर्डिंग आपको पर मंथ क्या करना है? स्पेंड करना है, आपके उसको बजट में लेके आना है। ओके, तो ये क्या है? आपके स्केर्स, दुर्लभ है। आपकी फैमिली एक्सपेंसेस पर मंथ हो रहा है 20,000, बट आपकी फैमिली की इनकम कितनी है? 10,000। जस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो 10,000 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? आप फैमिली एक्सपेंसेस करोगे, आप खर्चा करोगे, न कि आप 20,000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ओके, यानी दैट इज डिपेंड योर पॉकेट मनी। ओके, आपकी जो डिजायर्स हैं, एडवांटेज हैं, आपकी वांट्स हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो आप अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास जो स्केर्स रिसोर्सेस हैं उसको आप इस प्रकार से बेटर ऑप्टिमाइज यूटिलाइज करके आप क्या करते हो? अपने वांट्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, दैट इज वी लर्न अबाउट ऑफ द इकोनॉमिक्स। such a way that consumer can maximum their satisfaction. Such a way the consumer can maximum their satisfaction. यानी इन अपने रिसोर्सेज को यूज करके कंज्यूमर क्या करता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट करता है। यानी फैमिली इनकम 10,000 रुपीज है, आपके घर फैमिली के एक्सपेंसेस और 20,000 के हो रहे हैं, बट आप उसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हो कि फैमिली को 10,000 रुपीज से क्या मिले? आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो क्या? मैक्सिमम हो। ओके, producer can maximum their profit of society and maximum society welfare। और जो प्रोड्यूसर होता है, फर्स्ट जो था वो क्या था? कंज्यूमर था, और सेकंड क्या है अपना? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन करता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं कि वह अपने इस प्रकार से कम्युनिटीज का प्रोडक्शन करे जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेट हो और सोशल वेलफेयर हो। ओके, इन सिंपली वर्ड इकोनॉमिक्स इज द economics is the making choice of the present of scarcity. Consumer is the an analysis which study behavior of the an individual microeconomics and society of the whole। यानी जब इंडिविजुअल यूनिट्स को अपन स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो सब किस में इंक्लूड करेंगे? उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। एंड व्हेन वी रीड इन होल यूनिट्स आर रीड, देन वी इंक्लूड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दैट्स क्लियर। सेकंड, branch of the economy। branch of the economy branch of the economics, subject matter of the economics has been studied under two broadly branch। जब इसके ब्रांच के रूप में इसको डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स को, 1933 is a economics Regner
regular fish. The divide of in two parts of economics. First, microeconomics and second, macroeconomics. 1933 से पहले जब अपन इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उसको सिंगल पार्ट के रूप में स्टडी करते हैं, और वो क्या इकोनॉमिक्स था। जब जब 1933 में एक इकोनॉमिक्स आता है रेगनर फ्रीस, उसने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. यू लर्न इन योर सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 11th क्लास एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यू विल बी स्टडी इन द 12th क्लास. ओके, क्लियर. Microeconomics and macroeconomics. In microeconomics, we study the behavior of individual economics agents in the market for the different goods and services. जो एजेंट्स होते हैं इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज, उनके बारे में, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं. और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वी स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल वाई, यानी जब सभी एजेंट्स के बारे में अपन को स्टडी करनी है इकोनॉमिक्स में, सभी गुड्स के बारे में स्टडी करनी है, ऑल एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करनी है अपन को, तो उसको किस में इंक्लूड करते हैं अपन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं. ओके, जब पर्टिकुलर किसी पर्सन की इनकम के बारे में स्टडी करते हैं उसको अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेंगे. जब होल ऑफ द कंज्यूमर्स, होल ऑफ पर्सन आर इंक्लूड इन द इकोनॉमी, देन वी स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, जब सभी एक सिंगल फर्म के प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करनी है तो उसके ऊपर किस में इंक्लूड करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. और जब सारी कंट्री के सारी फर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर इंक्लूड करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ओके, क्लियर. The terms micro and macroeconomics we give the Proof Fisher, Norway in 1933. Okay, first time microeconomics. Microeconomics, the terms micro is the derived from the Greek words. यानी जो माइक्रो है वो कौन से वर्ड से मिला अपन को, ग्रीक वर्ड से मिला है. ओके, और कब मिला था माइक्रो इकोनॉमिक्स अपन को, 1933 में. Micros, which mean small, which mean a small means example of particular person income, particular consumption level, single goods, single services, that are included in small items. Microeconomics is the part of the economics theory which deal with the individual units of an economy. जब इंडिविजुअल यूनिट्स को अपन क्या डील करते हैं उसके स्टडी किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए शुगर इंडस्ट्री, ए फर्म, ए हाउस होल्ड एटसेट्रा. शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्री, सिंगल शुगर इंडस्ट्री के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो उसको इंक्लूड करते हैं ऑलवेज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड होल शुगर इंडस्ट्री आर इंक्लूड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब सभी शुगर इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं कंट्री में, वो किसका पार्ट होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा. और जब पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे वो पार्ट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का. ए फर्म, सिंगल फर्म, एनी फर्म, मार्केट में कोई फर्म, उसके बारे में स्टडी करेंगे वो, दैट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड होल फर्म्स आर इंक्लूड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द कंट्री. ओके, हाउस होल्ड सेक्टर. एग्जाम्पल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरिएबल्स, डिमांड, कमोडिटीज, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एटसेट्रा. Both are, all are single show of single units. Demand means particular person demand of a commodity, supply of a commodity यानी कितनी सप्लाई की जा रही commodity, income of a consumer, particular consumer income क्या है, price of the commodity, एक particular prices की commodity की prices क्या है, जैसे ए पेन, इस पेन की prices क्या है. जब इसकी स्टडी करेंगे तो उसको इसमें इंक्लूड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड whole pen price are included in the macroeconomics. Okay, example of a macroeconomics theory study: law of demand, law of supply, determination of consumer equilibrium, and determination of the production equilibrium, etc. All examples are included in your syllabus. One by one सभी examples हैं, इनको अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में स्टडी करेंगे. Okay, so all units are included in the microeconomics.
नेक्स्ट मैक्रोइकोनॉमिक्स. Macroeconomics. The terms macro is derived from the Greek words. सेम टू सेम ये भी किसका है, ये भी ग्रीक वर्ड है. मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे बना है, मैक्रोस से बना है. और इसकी कब स्टार्ट हो, 1933 में इसको डिवाइड किया था. ओके, विच मीन लार्ज, विच मीन लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल and macro means large. That is difference between macro and microeconomics. Macroeconomics is the part of the economics theory which deal with the aggregate unit of the economy. For example, all firms. Okay, all firms. Microeconomics we read in single firm, and macroeconomics and we read all firms, all industry, and microeconomics in a sugar industry, and here all industry, all producing units, etc. Example for macroeconomics variables aggregate supply, and microeconomics only in supply, but here aggregate supply, aggregate demand, national income, and microeconomics in a consumer income, and here national income, total output, etc. That means जब अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट्स को अपन होल के रूप में स्टडी करते हैं तो सारे एग्जांपल किसके होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल होते हैं. एग्जांपल ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी थ्योरीज: determination of the equilibrium, level of income, determination of the foreign exchange rate, determination of the government budget, etc. All are included in the macroeconomics. And when we read in microeconomics in particular units, particular goods, particular person's income, and we read in the macroeconomics, then we read of whole of economics studies. Okay, and macroeconomics is a various name is a employment theory, and microeconomics is price level. Okay, that is different. So you read in your book differences between micro and macroeconomics. Okay, all students, इस वीडियोज को सुनने के बाद में सभी स्टूडेंट्स अपना जो कमेंट यूट्यूब चैनल अपना सब्जेक्ट का उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी स्टूडेंट्स अपना कमेंट्स में अपने आइडियाज़ भी कीजिएगा कि आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है. तो सारे स्टूडेंट्स अपना नाम और आपका स्ट्रीम कॉमर्स में है, और उसके साथ आप उसमें डिटेल्स से इंक्लूड कीजिएगा कि आप स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड है या आपका नंबर नहीं है. ये सारे स्टूडेंट ये डिटेल्स है मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में सेंड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.